Hello students. So as you all know, we are progressing with this Russian Revolution chapter. I hope the topics that we are discussing, those topics are very clear to you, because until and unless you are clear with these topics, you won't be able to understand the whole chapter. Previously also I have discussed, again I am discussing that at times it happens that the students are not understanding certain topics. So just go through it, and then whatever doubts you have, you can please get it cleared in the online session. Okay, so now here we are talking about this. We have discussed yesterday, but certain वो ना थोड़ा सा clean नहीं आ रहा था. There were certain words that were hidden, so that's why I have just taken it out. We have discussed about Marva Vasilva, how women have contributed in the Russian Revolution. So there it was the celebration of Women's Day. She had called a strike, and what did the women workers do? They presented a red bow. In all these communist societies, red bow is the mark of communist, means labor group. The changes that the labor group is bringing in the industrial societies, in the communist societies, that is what is depicted through red ribbon. So women workers, what did they do? They presented the red bow to the men. And then Marfa Vasilva, she was a machine operator. She stopped the work. सोचो, मतलब she was uneducated. I told yesterday also, कल भी मैंने बताया था. So they started a strike, and workers were ready to support her. All the workers were providing her their support, and especially what happened, the foreman informed the management. Foreman means the in charge of the machines is the foreman. और जब मैनेजमेंट को उसने जाके बताया कि ये मार्फा वसिल्वा नाम की एक लेडी है, एंड शी इज़ आस्किंग द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, तो उन्होंने क्या किया ना, दे सेंड हर अ लोफ ऑफ ब्रेड. मतलब भूखे मर रहे हो तो लो खाना खा लो. तो शी टुक द ब्रेड एंड शी सेड कि व्हाई शुड आई गो बैक टू द वर्क जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग मी ब्रेड. ब्रेड लेके आई शुड स्टॉप द स्ट्राइक एंड ओबे व्हाट यू आर सेइंग. सो administrators ने क्या किया, that she refused to work. The administrators asked her again कि काम करना क्यों बंद कर दिया, and she replied that I cannot be the only one who is satiated. मतलब खाली मेरी ज़रूरतें नहीं हैं, it's not only my need, it is others need also. So women workers from other section also gathered around Marfa, that when support is to be given, when favor is to be given, it has to be equally given to all the workers, not just Marfa Vasilva or her friends. And what happened, all the other women ceased working. बाकी की औरतों ने भी काम करना बंद कर दिया. Now what happened, men also downed their tools and the entire crowd crushed into the street. सारे लोग जो है रोड्स पे आ गए. ये हमने कल भी बताया था आपको. You have to understand, you have to learn, you have to see from where it has been taken. ये चॉय चटर्जी ने women के बारे में बुक लिखी है. From there this extract has been taken. Got it, children? So देखना, all these paragraphs, all these things that are given are important. Okay. Now what happened, children? We have already started the February Revolution. आपको पता ही है कि the emperor was abdicated, और emperor को कहा गया था कि आप भाग जाइए, because everybody, all the people on the left bank of river Neva, वो सारे आ गए थे towards the right hand side, and now everybody was opposing the Tsar. So the army, they came to help the Tsar, and but they said कि जो सिचुएशन है, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज़ प्रिवेलिंग, इट इज़ अनकंट्रोलेबल. तो क्या हुआ कि द एम्परर रैन अवे, एंड फेबररी के बाद क्या हुआ, आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी मतलब द मनी पीपल, मतलब अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो यहाँ भी क्या हुआ कि द पीपल जो जिनके पास बहुत पैसा था, द पीपल हु वेयर क्लोज टू द
emperor, they formed the provisional government. And provisional government means, you know it very well children, कि a government that is formed temporarily. लेकिन liberals और socialist दे सेड कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या होता है ना, इलेक्शंस नहीं होते हैं, इमीडिएटली कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके और एक गवर्नमेंट बना दिया जाता है. तो नाउ द पीपल हु वेर इन्फ्लुएंशियल, जिनका थोड़ा सा पावर था, दे रेस्ट्रिक्टेड, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस और रिमूव करना चाहिए. रिमेंबर हमने पहले पढ़ा हुआ था दैट there were so many restrictions, people could not organize any movement, people could not take the decisions on their own. मतलब गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ पे रोक लगाई हुई थी. सो द पीपल सेड कि अभी इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस के बाद ये एसोसिएशन पे जो रोक लगाई हुई है इट शुड बी रिमूव्ड. एंड सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत, हर जगह पे ये क्या किया इन्होंने, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ जाके छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए. इलेक्शन तो फॉलो नहीं हुआ, पीपल वेयर इलेक्टिंग देयर ओन लीडर्स. अब ऐसे टाइम में जो भी लोग थोड़े इन्फ्लुएंशियल थे, जिनका भी थोड़ा बहुत पावर था, दे वेयर कैरिंग ऑन इन देयर ओन मैनर. इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड 1917 में, रिमेंबर लेनिन, व्लादिमिर लेनिन. लेनिन के बारे में हमने पहले भी बात किया है, द लीडर ऑफ द बोल्शेविक ग्रुप. वो जिस समय ऑल दीज पीपल, ऑल दीज मूवमेंट्स वेयर देयर, जहाँ पे कि द लीडर्स वेयर नॉट एट ऑल अलाउड टू ऑर्गेनाइज एनी मूवमेंट और टेक देयर ओन डिसीजंस. लेनिन केम बैक टू रशिया, मतलब अभी तक वो छुप के रह रहे थे, वो वापस आ गए. एंड बोल्शेविक्स जो हैं, ही एंड द बोल्शेविक्स जिन्होंने वॉर को अपोज किया हुआ था 1914 से, उनको लगा, नाउ ही फेल्ट कि सोवियत शुड टेक ओवर द पावर. ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने थे ना, ऑल द सोवियत सेट अप एवरीवेयर, दीज पीपल सोवियट्स लाइक पेट्रोग्राड सोवियत वेयर सेट एवरीवेयर. एंड ही सेड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, कि जितना भी ये सब टर्मोइल चल रहा है एंड ऑल द टेंशंस दैट आर देयर, इट शुड कम टू एन एंड. एंड आई एम सॉरी, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. मतलब जितनी भी अमीर लोगों की जितनी भी ज़मीनें हैं, ऑल द लैंड दैट बिलोंग टू द रिच पीपल, इट शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड, ऑफ कोर्स, मतलब देयर शुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट शुड लुक आफ्टर द बैंक. हमारे यहाँ पे भी देखो अभी इंडिया में क्या है, इन द बैंक ऑल द ऑर्डर्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड और ऑल द ऑर्डर्स दैट आर फॉलोड, it is followed as per the central government's order. So 3 demands were there. Lenin ने आके क्या किया, he had put up the, he gave April thesis. अभी 3 मार्क्स के लिए इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन, कि इन्होंने आके अप्रैल थीसिस बनाया. एंड क्या था इस अप्रैल थीसिस में, अभी हम इसको जानेंगे. और उन्होंने कहा कि बोल्शेविक पार्टी जो है वो अपने आप को दे शुड रीनेम. अब उसको दे शुड नॉट कॉल इट एज बोल्शेविक पार्टी, दे शुड कॉल इट एज कम्युनिस्ट पार्टी. एंड इंडिकेटेड देयर रेडिकल एम्स. रेडिकल एम्स मीन्स बहुत शांति से ये कोई काम नहीं करने वाले थे. दे वर गोइंग टू बी वेरी फोर्सफुल इन ऑल द थिंग्स दैट वेयर टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड इन ऑल द मैनर्स दैट द डिसीजंस वेयर टू टेक प्लेस. तो क्या हुआ, पहले तो अदर बोल्शेविक पार्टीज पहले दे वर सरप्राइज्ड विद द अप्रैल थीसिस. आई एम सॉरी, ऑल द मेंबर्स इन द बोल्शेविक पार्टी ना, दे से कि अप्रैल थीसिस क्या है, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च हो गया, मार्च में पूरी एक्टिविटीज़ हो गई, अप्रैल में इन्होंने अपने डिमांड्स रखे विच वॉज कॉल्ड एज अप्रैल थीसिस. एंड द मेंबर्स थॉट कि अभी सही समय नहीं है, द टाइम वॉज नॉट राइप to carry on such a big movement on such a large scale. Okay, so children, here we talk about the April thesis. और ये रहे 3 demands. First, Soviet to take over the power. Second, war should be brought to a close. This was the second demand.
and land be transferred to the peasants. Third, and banks be nationalized. Fourth, मतलब थ्री डिमांड्स, मेजर थ्री डिमांड्स वॉज देयर. सोवियत टू टेक पावर, सोवियत को कैसे लाना है ये चीज़ था. ऑल अगेन मार्केट, पहला तो वॉर ख़त्म करना है. दूसरा, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, दिस वाज द सेकंड. एंड बैंक्स बी नेशनलाइज, थर्ड. थ्री डिमांड्स इन द अप्रैल थीसिस. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, चाहे वो आपके हाफ ईयरली हो या यूनिट टेस्ट हो. जो भी एग्जामिनेशंस होंगे बेटे, उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली. तो अभी क्या हुआ दैट द कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दें एंड बोल्शेविक पार्टी, पहले तो द पीपल हु वर देयर, उनको लगा कि अभी टाइम सही नहीं है. दिस वाज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट सच अ डिमांड एंड पुट अप सच अ थिंग इन फ्रंट ऑफ द to start such a movement on such a large scale. People were not very convinced with that. But then what happened, just see, it is mentioned here very clearly that time was not correct for socialist revolution and provisional government को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए. they needed to be supported, उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए. लेकिन आगे के दिनों में क्या हुआ, subsequent months में the changes that happened, it changed their attitude. The Communist Party, the Bolshevik Party workers and their attitude changed. In all over the summer, the workers spread. पूरा workers क्या हुआ, the workers movement that had started, the movement that was initiated by Bolsheviks, by the Communist Party, it spread all over Russia. And industrial areas में especially, जहाँ पे industries थी, small groups were formed, factory committees were formed where the welfare of the factory workers was taken care of. It was decided that whatever things will happen in future will happen according to the requirements of the workers. So it began questioning the way industrialists ran their factories. Industrialists were owning the factories, they were running the factories. Now the small groups that were formed, they were saying कि ये parties अगर हो रही हैं, these parties that are doing their work, how are they working? What is their mode of work? तो अभी who were in trouble, the people who were in trouble were the industrial owners. Trade unions बढ़ते चले जा रहे थे, and in the same way everywhere committees were formed. Means the common people were getting more power in comparison to the rich people, owners, industrialists, the people who were owning the industries. Soldier committees were also formed. जून में क्या हुआ, इन जून 500 सोवियट्स, ये जो सोवियट्स बने हुए थे, it was initially initiated by Bolsheviks, it was initiated by Vladimir Lenin. इन्होंने क्या किया, they sent representatives to all Russian Congress. हर जगह पे इन्होंने अपने representatives भेजे. Means the people who will be looking after the movement that is being carried on in Russia. And what happened? अभी remember the provisional government that was formed? प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि ये लेनिन आके और सोवियट्स की वजह से इनका पावर कम होता जा रहा है एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रो कर रहा है. लेनिन वॉज अ वेरी गुड लीडर. In fact, I would say that he was a great leader. So the way he was carrying on with this movement, so this party, the provisional government, which had taken over after the abdication of the king, of the emperor, now they were in trouble. तो उन्होंने कहा कि ये बोल्शेविक पार्टी को उभरने नहीं देना है एंड दे स्टार्टेड टू टेक स्टर्न मेजर्स. बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है बोल्शेविक्स के साथ. एंड नाउ इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स. इन्होंने कहा कि ये वर्कर्स, द वे द कमिंग अप, द वे वर्कर्स आर पुटिंग अप देयर डिमांड्स, इट वाज नॉट प्रॉपर. एंड
began arresting the leaders. खाली वर्कर्स मतलब इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रियलिस्ट हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी, लाखों रुपए इंडस्ट्री को ओपन करने में लगा चुके हैं. हाउ इज इट पॉसिबल दैट द होल पावर एंड द होल मनी इज पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द वर्कर्स? प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल. सो दीज पीपल दे वर टेकिंग स्टर्न मेजर्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए एंड बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट किया. डेमोन्स्ट्रेशंस वेयर देयर बाय बोल्शेविक्स. बोल्शेविक्स ने अपनी मूवमेंट को बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया एंड दिस वेयर स्टर्नली मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा इन अ वेरी ब्रूटल मैनर, मार पीट, फ्लॉगिंग एंड गिविंग पनिशमेंट्स. मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो हाइडिंग इट और फ्री. मतलब अब बोल्शेविक लीडर्स जो इतनी तेज़ी से अपना काम चला रहे थे, सडनली अ टाइम हैड कम व्हेन दे फेल्ट दैट इट वाज अ टर्बुलेंट टाइम फॉर देम, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर देम. सो दे हैड हिडन देमसेल्व्स और दे हैव टू फ्ली फ्रॉम, मतलब भागना पड़ा उनको. दे हैव टू फ्ली फ्रॉम देयर. नाउ व्हाट हैपेंड? Just see children, it is mentioned here just now that we were discussing. They have to go hiding or they have to flee. इनको जब भागना पड़ा तो the movement had to stop for some time because leaders were not getting their power, leaders were arrested, leaders were treated in a very bad manner by the provisional government. तो countryside में in the meantime, गाँव, गॉट इट, ये सारी चीज़ें शहर में हो रही थी. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स दैट वेर हैपनिंग एवरीवेयर. खाली शहरों में ही नहीं, गाँव की भी कंडीशंस समझने की हमको कोशिश करनी पड़ेगी. पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स, जो लीडर्स शहरों से भाग के गए थे वो गाँव में चले गए थे. एंड ऑल दीज लीडर्स दे प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. इन्होंने कहा ये जितने भी अमीर लोग हैं जिन्होंने सारे they have the rich people who have kept all the money with them, all the land with them, they needed, the time had come when they needed to redistribute this land. And land committees were formed कि land distribution होगा ना, इतनी सारी ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, thousands of acres land were there, peasants were working on that. So who will be looking after that? किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको कितनी ज़मीन मिलनी है, दैट नीडेड टू बी डिसाइडेड. सो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वेर वेरी encouraged by whatever movement was happening and peasants seized the land between July and September. जितनी भी बड़े लोग, जितनी भी ज़मीनें थीं, सारे किसानों ने मिलके वो सारी ज़मीनें ले ली अपने पास. दे सीज्ड, कैप्चर कर ली, कब्जा कर लिया. Try to understand this, okay? And किस समय किया? Try to understand the timing when this has happened between July and September. Means the Bolsheviks' power was increasing. Try to understand this thing. Bolshevik, their power was increasing, and the other people's power was decreasing. Abhi, just see the revolutions that were happening in Russia. You can see, children, how people are being repressed. Just see, it is mentioned here. The demonstrations that had happened. ये आप नीचे में देखो, just look at below. यहाँ पे informations are there. A demonstration July 1917 and being fired upon by the army. Army तो अभी इस समय according to the orders of the provisional government ना, आर्मी तो जो गवर्नमेंट होती है उसी को सर्व करती है. The army is always working for the government. तो गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कि भाई इनको बहुत तेज़ी से हटाना है and they should be flogged and they should be removed. Now here I would like to show you this. He is Lenin.
जिस तरह से अभी ट्राई यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन थिंग दैट द वे वी रेस्पेक्ट महात्मा गांधी इन इंडिया, इन द सेम वे लेनिन इज़ रेस्पेक्टेड इन रशिया. रशिया में ही इज़ लाइक अ गॉड टू द पीपल. Now what happened? So just see the place जहाँ पे हमने शुरू ख़त्म किया था. Peasants seized the land between July and September, and the movement was taking a very different turn. Now what happened? The revolution started in the month of October. The revolution that had started, try to understand this. जो टसल शुरू हुआ था ना थी बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स, ये लड़ाई बढ़ती चली गई. फेब्रुअरी में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, रिमेंबर चिल्ड्रन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हैड स्टार्टेड. फेब्रुअरी से मार्च में आए, मार्च से वी हैव कम टू अप्रैल वेयर लेनिन हैज़ गिवन द अप्रैल थीसिस. जुलाई में द लैंड्स वेर बीइंग सीज्ड. काफ़ी सारी ज़मीन पे इन सोशलिस्ट ने कब्ज़ा कर लिया था. दिस वॉज अ मोमेंट, दिस वॉज अ टाइम दैट वॉज वेरी डिस्करेजिंग फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट. एंड लेनिन को अभी थोड़ा ये डर लग रहा था दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप. अब उनको लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट एक ऐसा लीडर बना दे हु इज़ जस्ट लाइक डिक्टेटर और फिर सारे लोगों को उनकी बात माननी पड़े. तो सितंबर में उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड लेनिन डू? ही बिगैन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट. लेनिन वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन इन रशिया. वो जो कहते थे लोग उनको मानते थे. People obeyed him, and people knew that Lenin, whatever he was doing, was in the favor of common people. मतलब उनको अगर वो लेनिन को फॉलो करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल, इफ दे फॉलो लेनिन दे विल नॉट फेस एनी लॉसेस. उनको एज सच कोई नुकसान नहीं होगा. एंड बोल्शेविक क्या हुआ? सपोर्टर्स इन द आर्मी, आर्मी में भी बहुत सारे लोग थे जो बोल्शेविक्स को मतलब लेनिन को सपोर्ट कर रहे थे. सो फैक्ट्रीज वेयर ब्रॉट टुगेदर. अभी बोल्शेविक्स ने क्या किया? सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत, फैक्ट्री, इन सबको साथ में ले आए. याद करना यहाँ पे, हियर आई वुड लाइक टू मेंशन जस्ट वन थिंग. व्हेन लेनिन हैड स्टार्टेड हिज मूवमेंट ही वाज सेइंग कि पीजेंट्स को जो है हम इस मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे. एंड जस्ट सी इन्होंने क्या किया? ही कैरिड ऑन हिज मूवमेंट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. स्पेशली क्या किया इन्होंने? एजुकेटेड क्लास को अपने साथ मिला लिया. पीपल हु आर वर्किंग इन आर्मी, पीपल हु आर वर्किंग इन सोवियट्स, पीपल हु आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज. अभी यहाँ आप देखो पीजेंट्स का नाम नहीं है. We do not find the peasants here. किसानों को, हम किसानों का ग्रुप यहाँ पे मिसिंग था. Got it? Try to understand this thing. तो इन सबको साथ में ले आए. एंड 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया? पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी को मिला के इन्होंने कहा कि अब ये जो लोग पावरफुल हैं, द पीपल हु आर देयर as provisional government, they should leave the power and all the power should pass in the hands of Bolsheviks and Petrograd Soviet. And a military committee was formed, Soviet, under Leon Trotsky. इन्होंने क्या? because military was supporting the Bolsheviks ना, remember? तो लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत को बुला के
मेनी एजुकेटेड मेंबर्स वेयर देयर। एक मिलिट्री के ग्रुप्स जो कि बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ मिलके इन्होंने एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी इस्टेब्लिश किया एंड इट वाज अपॉइंटेड अंडर द और एक लीडर बना दिया, द मिलिट्री लीडर हु विल लीड द मूवमेंट, लियोन ट्रॉट्स्की। सो डेट अभी किस दिन ये होगा ना, ये सबको बताया नहीं गया था, नहीं तो क्या होता ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती। And as a result, what happened? That the uprising started on 24th October. And provisional government में who was the prime minister? Provisional government को समझ में आ गया था कि I'm sorry, the Bolsheviks have taken the power in their hands, and Kerensky had left the city to summon troops. जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो फिर पेट्रोग्राड से चले गए और उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को ज्वाइन किया, जो कुछ लोग थे जो कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते थे ना। मिलिट्री में सारे लोग ऐसा नहीं थे ना दैट दे वेर सपोर्टिंग लेनिन। तो एट डॉन, डॉन मतलब अभी सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या हुआ, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक्स। सो केरेंस्की को अभी समझ में आ रहा था दैट द टाइम हैड कम जहाँ पे कि ट्रबल आ गई है। एंड ऐसे उन्होंने क्या किया, आर्मी को तैयार करने के लिए सुबह सुबह शहर से निकल गए। एंड कुछ लोग हु वर लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। बोल्शेविक्स वेर स्प्रेडिंग देयर आइडियाज़ ना, तो किसका इस्तेमाल कर रहे थे वो? बोल्शेविक्स वेर स्प्रेडिंग देयर आइडियाज़ थ्रू द मीडिया। They were using media a lot, and troops were sent to take over telephone, telegraph, सब चीज़। गवर्नमेंट चुप थोड़ी बैठेगी। When army and Bolsheviks and Soviets have made up their mind to throw the government, so they are not going to be sitting quietly and observing anything, no? And protect the Winter Palace. लेकिन मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट। रिवोल्यूशनरी कमिटी वॉज मोर पावरफुल। देखो, जिसके पास पावर होता है ना, सारे लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। एंड रिमेंबर द नेम, क्या नाम था? लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की हैज़ ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर्स। ही ऑर्डर्ड द सपोर्टर्स टू सीज द गवर्नमेंट एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स, लेट द शिप ऑरोरा, शिप का नाम याद रखना। दे शेल्ड द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस जहाँ ज़ार रहते थे, किंग का जो पैलेस था, किंग का जो महल था, वहाँ पे ये मिलिट्री कमिटी जो थी विच वेर सपोर्टिंग द बोल्शेविक्स, दे स्टार्टेड बॉम्बिंग। ठीक है, शेल्ड, शेल्ड मतलब बॉम्ब गिराने लग गए। एंड अदर वेसल्स, वेसल्स मीन्स स्मॉल शिप, छोटी छोटी जो जहाज़ें थी, they sailed down the Neva river, remember? छोटे छोटे जहाज एंड बड़ा सा शिप, ये नदी के ऊपर ये सारे घूम रहे थे। मीन्स नेवा रिवर के एक तरफ वर्कर्स थे, एक तरफ लीडर्स। रिमेंबर, ऑन वन साइड, राइट हैंड साइड देयर वेर द वर्कर्स एंड लेफ्ट बैंक देयर वेर द रिच पीपल। तो वहाँ से लॉट ऑफ बॉम्ब्स वेर ड्रॉप्ड। And by night what happened, city was under the committee's control. रात आते आते पूरी सिटी पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। एंड द मिनिस्टर्स, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले जो मिनिस्टर्स थे, दे हैड टू सरेंडर। उनके पास कोई उपाय नहीं था, वो समझ गए दैट द बोल्शेविक्स एंड लेनिन, द वे ही हैज़ लेड द मूवमेंट, इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज एस्टैब्लिश्ड इन पेट्रोग्राड। मेजॉरिटी, अब क्या हो रहा था इन द सिटी इन रशिया, एवरीबडी वॉज सपोर्टिंग द बोल्शेविक्स। बाकी की जगह पे भी देर वॉज लॉट ऑफ अपराइजिंग, पीपल वेयर रेजिंग देयर वॉइस। मतलब बोल्शेविक्स को दे वेर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर, गॉट इट। एंड हेवी फाइटिंग वॉज देयर, स्पेशली मॉस्को में।
And by December what happened? The Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. पूरे एरिया पे इन लोगों ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फिनिश्ड. So you have to understand the movement that had started in Feb, then in March किंग को हटा दिया, फिर अप्रैल थेसिस आया, देन जुलाई में लैंड पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया एंड बाय अक्टूबर दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. पूरा का पूरा एरिया जो है वो अक्टूबर से मूवमेंट शुरू किया था. बाय दिसंबर बोल्शेविक्स का झंडा हर जगह लहरा रहा था. गॉट इट? सो इतना पढ़ लेना बच्चों. उसके बाद यू हैव एनी डाउट्स जस्ट आस्क मी. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.